Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Today morning I received a message. Sir, I am facing anxiety. How I can handle this? Now, this is a common problem with everyone who is preparing for examination. And as exam near, anxiety level increases. So this is nothing new with that particular candidate or any other candidate. But we can very easily handle the anxiety. Although anxiety is difficult to handle, but it can also be handled very easily. Why anxiety comes? Anxiety comes when we overthink something, when we overanalyze something, when we engage into discussion with something, and some negative thoughts crops into our mind. And mind has its own limitation. Whatever we feed into the mind, it is processed by it, and once it is processed by it, it can give you various outputs, and one of the output may be stress, one of the output may be anxiety, one of the output may be depression. So it is our role what type of inputs we are giving to our brain. So avoid all those social medias where such material is available which creates unnecessary thought process in our mind. It may be related to anything. Avoid all those platforms. Avoid all those groups where you are getting only negative and negative thoughts. Instead of that, what you should do? You should concentrate on your task. And your immediate task is to study and study. And that's why we give you timetable on daily basis, because that organizes you, that gives a framework to you, and once you have a framework you can work on that. So even if you are trying to study and you are distracted, don't bother, again try to study. Don't bother, again try to study. And the moment you are determined that I will study, suddenly it will become your habit. So avoid negative thoughts. How you can avoid? Don't remain part of those social media groups where only negative news is emerging. And that's why in our channel I rarely cover the negative news. I always cover the good news. News is always both ways. And daily there may be some good news, there may be some bad news. But why we should discuss bad news? We should always discuss the good news. The good news gives us encouragement. This encouragement may be temporary, this encouragement may be permanent, this encouragement may be momentary, but encouragement is required to concentrate. It acts as a nourishment, it acts as a catalyst, it acts as a food for thought for a person. If I always read negative aspects, I will become negative. If I read positive all the times, I will become positive. And it is very important for a person to be successful, to remain positive, be positive, and remain focused to his or her goal. Your goal is to get the job. No other thing matters you. What is happening in the country, what is happening in internationally, it does not matter to you at this stage. People will try to deviate your attention towards unnecessary issues. Don't get deviated. Your only issue is employment. Always be very clear, your only issue in this world is employment. And if I study, I can be employed. The moment you understand this, you are at the top of the world. And if you are diverting your energies to any other thing than study, you are harming yourself. And that's why every day morning I spare the time, I make a timetable for you so that you develop a habit and you become focused on your goal, and that is to get the job. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज सुबह सुबह एक मुझे मैसेज आया कि सर मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए.
अब ये जो समस्या है ये खाली उस युवक की नहीं है जिसने, या जो युवती की है जिसने मुझे मैसेज भेजा, नाम नहीं लिखा इसलिए मैं नहीं जान सका, बट ये समस्या हर किसी की है, हर एज ग्रुप की है। इस दुनिया में एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन भरपूर मात्रा में है, चारों तरफ है। और उसका कारण क्या है कि जो आज हमारा माहौल है, जिस सोशल मीडिया के अंदर हम जी रहे हैं और जिस सोशल मीडिया का हम हिस्सा हैं, वहाँ पर ये जो सप्लाई है प्रचुर मात्रा में है। कहीं भी हम जाएंगे वहाँ नेगेटिव 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 न्यूज़ धड़ाधड़ एक के बाद एक दी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ बिकती है, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं बिकती है। किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च की है, ये न्यूज़ हेडलाइन नहीं बन सकती, पर कहीं पे मर्डर हो गया है ये हेडलाइन बनती है। नेगेटिव न्यूज़ बिकती है और इसलिए जो इसको सप्लायर हैं वो वहीं पे फोकस करते हैं, मगर हम उसके यूज़र हैं। नेगेटिव न्यूज़ से हमें कोई लेसन नहीं मिल रहा है। नेगेटिव न्यूज़ सिर्फ हमारे मन में चिंता, भ्रम पैदा कर रही है। मेरा क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है नौकरी पाना। मेरा क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य एकमात्र है नौकरी पाना। देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में क्या घटनाक्रम हो रहा है वो मुझे रोटी नहीं देगा। मेरे को सिर्फ अपनी नौकरी लेने के लिए प्रयास करना है। जब तक मैं सेटल्ड नहीं होता तो मैं ड्राइंग रूम डिस्कशंस में नहीं फंस सकता हूँ। ये मुझे क्लियर करना है अपने माइंड में। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से आपको लगातार नेगेटिव खबरों का प्रसारण हो रहा है, उससे आप बाहर हो जाइए और आप क्या करिए, जहाँ आपको पॉजिटिव खबरें मिल रही हैं सिर्फ वहाँ पर रहिए। इसीलिए आपने देखा होगा हम अपने चैनल पर सिर्फ गुड न्यूज़ देते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूज़ दोनों आती हैं, गुड न्यूज़ भी आती हैं, बैड न्यूज़ भी आती है, मगर बैड न्यूज़ देके मिलेगा क्या? आप तो और चिंतित हो जाओगे, और परेशान हो जाओगे, पहले ही परेशान हो। एक परेशान आदमी को और परेशान करने का कोई समझदारी नहीं है। पर गुड न्यूज़ से क्या होता है, एक आदमी परेशान है, उसको सहारा मिलता है, डूबते को तिनके का भी सहारा है, और उस होप से वो जिंदा रहता है, आगे बढ़ता है तो कामयाब भी हो जाता है। तो इसीलिए निरंतर गुड न्यूज़ हम इस चैनल पे देते हैं, चाहे वो गुड न्यूज़ मोमेंटरी क्यों ना हो, चाहे वो गुड न्यूज़ परमानेंट क्यों ना हो, पर गुड न्यूज़ हमें इनकरेजमेंट देता है, हमें नरिशमेंट देता है, हमारे दिमाग के अंदर शांति देता है, हमारे दिमाग में एक दिशा देता है, हमें आगे बढ़ाता है। तो यदि मुझे कामयाब होना है और एंजाइटी को दूर करना है, स्ट्रेस को दूर करना है, मुझे अपने काम पे जुटे रहना चाहिए। और मेरा काम क्या है? पढ़ाई, पढ़ाई एंड पढ़ाई। अगर मैं निरंतर पढ़ता रहूं, जितने मर्जी डिस्ट्रैक्टर्स आएँ, मैं कामयाब जरूर होऊंगा। मैं पढ़ने बैठता हूं, मेरा मन भटक जाता है, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, पढ़ने की कोशिश करते रहो, धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाएगी मुझे पढ़नी है। इसीलिए टाइम टेबल देते हैं। टाइम टेबल से आपकी एक दिशा बनती है। टाइम टेबल से आपको ये लगता है मुझे 2 घंटे तो लगाने हैं इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश नहीं समझ आ रही है फिर भी मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मुझे समझ नहीं आ रही है फिर भी मुझे पढ़नी है। और एक बहुत अच्छा दुआ है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो इवन जो जड़मती है, जो ऐसी मती है जिसमें कुछ नहीं घुस सकता है, वो भी सुजान हो जाती है। सुजान का मतलब उसमें भी सब कुछ जानने लगता है। जैसे कि रस्सी, एक जो चट्टान जैसी शिला है, उसके ऊपर बार बार रगड़ा खाती है तो उस पर भी निशान डाल देती है, जबकि रस्सी कितनी नरम है और चट्टान कितनी सख्त है, मगर वो फिर भी कामयाब होती है। इसीलिए अगर हम अभ्यास करते रहते हैं, हम जरूर कामयाब होते हैं। और इसीलिए अगर मुझे एंजाइटी को दूर करना है, स्ट्रेस को दूर करना है, तो मुझे अपना ध्यान पलटना है। और ध्यान पलटना कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं ये मान लूँ कि मुझे पढ़ते रहना है, कोई मुझे इससे हटा नहीं सकता। शुरू में मुश्किल होगी, मैं पढ़ने बैठूंगा, मेरा मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ते रहना है। और इसीलिए रोज़ उठ के मैं आपके लिए टाइम टेबल बनाता हूँ। कई लोगों को लगता है कि सर रोज़ टाइम टेबल क्यों बनाते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? मैं आपके लिए करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आपको एक दिशा मिल जाए। रोज़ मैं आपको एक पटरी पर ला के खड़ा करता हूँ ताकि आपका डब्बा चल पड़े उस पर। अब पटरी से आप उतर जाते हो,
फिर आपको लाता हूँ पटरी पे और किसी न किसी दिन आपकी गाड़ी सुपर फास्ट चल पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।